gospel. और सुसमाचार में जाने से पहले हम मृत सागर कहाँ बसा हुआ है और वो कहाँ पर स्थिति है उसके बारे में पहले हम देखेंगे. So the Dead Sea is a salt lake. और उस मृत सागर को उस नमक की झील भी कहा जाता है. And that place is a place where not even you will find a blade of grass growing. और उस जगह एक ऐसा जगह है जहां पर कि आप कुछ घास भी नहीं पा सकते हैं. So let us consider that part, and you can see the screen. So this lies in the Jordan Rift Valley. और ये जो मृत सागर है जॉर्डन है. Hello. Can someone take over? Yes, sir. Yes sir, I am here. Yeah, so it is a lake, it's a big lake, and its main tributary is the Jordan River. और ये बहुत ही बड़ा एक झील है और यॉर्दन नदी के साथ इसका जुड़ा हुआ है. So the Jordan River flows into the Dead Sea, and it is at a level which is 430 meters below sea level. और मृत सागर उस यॉर्दन रिवर के साथ जुड़ा हुआ है और 430 मीटर वो नीचे है. So normally, you know, the length of a football field is approximately 100 meters. और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जानते हैं एक फुटबॉल ग्राउंड का जो मीटर है 100 मीटर होता है. So the length is 100 meters. So if you have 4 football fields, 1, 2, 3, 4, that length is almost half a kilometer. That is the place, and the Dead Sea is already 430 meters below sea level. और इसमें हम देखते हैं कि मृत सागर करीबन आधा किलोमीटर चौड़ाई है. And it is the lowest elevation on land in anywhere in the world. और ये सबसे नीचा लेवल पर है जहां दुनिया के सबसे नीचा में है. So it is 50 miles long and 11 miles broad. और ये 50 माइल्स उसका प्रसार है और लंबाई है 11 माइल. नहीं, लंबाई is 50 and breadth is 11. ओके, लंबाई जो 50 माइल्स है और जो उसका चौड़ाई है 11. So I am putting you a map of Israel. So first, please go to the right side map. You will see the Dead Sea here. Can you see this? This is the Dead Sea. मैं आप लोगों के सामने इजराइल का एक मैप को साझा करता हूं. सबसे पहले आप दाहिने के ओर देख लीजिए. So where the arrow is moving is the Dead Sea. On the north is Jericho. और हम देखते हैं कि जहां वो आरो को देख सकते हैं वो कहलाता है मृत सागर और उसका जो आगे है यरीको करके हम देखते हैं. On the north you see Lebanon. और उत्तर में आप देख सकते हैं लेबनान करके. Then you see Nazareth here. लेबनान के बाद नासरत देख सकते हैं. And then you see the Jordan River starting from here, from the before the Sea of Galilee, or it is called the Lake Gennesaret. So Lake Gennesaret, the Lake of Tiberias, all are the same. So this is the water body in the north, and then it flows through the Jordan River Valley. The Jordan River happens, and then it flows into the Dead Sea. और जो गलील की झील से
वहाँ गलील की झील और मृत सागर के बीच में यर्दन नदी बह रही है, हम देख सकते हैं। So you see Jerusalem on to this side, which is on the left, and you see Jordan on to the right. और बाएं साइड में यरूशलेम को देख सकते हैं और यर्दन को हम दाहिने में देख सकते हैं। And you see Egypt. Can you see Egypt? Yes, yes. Okay, so the country of Israel, you see Egypt, Jordan, Syria on the north, and you see the West Bank, and you see Tel Aviv. The capital was Tel Aviv. Now they have made Jerusalem the capital. So this is where it is. And if you see this map, it gives you an idea of the location. और इसमें हम देख सकते हैं मिस्र का स्थिति के बारे में देख सकते हैं, फिर यरूशलेम का, फिर सीरिया के बारे में भी हम देख सकते हैं। अभी यरूशलेम को वहां का जो कैपिटल बनाया गया है। So you see Sodom and Gomorrah is here. और मृत सागर के करीब में सोदम और गोमोरा भी है। In spite of the prayers of Abraham, the God put brimstone and sulfur and fire and destroyed Sodom and Gomorrah, but saved Lot out of his destruction. और हम देखते हैं कि सोदम और गोमोरा में परमेश्वर के इस प्रकार से वहां का जो शहर को जला दिया और वहां के जो संत लोगों को, अब्राहम के बेटे, अब्राहम के पुत्र भांजे को और अब्राहम को वहां से छुड़ाया। And when you see what was the reason why God did that to those twin cities of Sodom and Gomorrah. और आप लोगों को ये भी पता है कि प्रभु यीशु मसीह उस सदम और गोमोरा को नाश करने में उसके पीछे क्या कारण था। That it was the sin of the people of Sodom and Gomorrah, and the specific sin which he dealt with was homosexuality. और वहां का जो नाश करने का कारण ये था कि वहां पर समलिंग जो संपर्क में आए थे, वो जो सबसे बड़ा एक पाप था, उसी के लिए उस शहर को नाश किया था परमेश्वर ने। And what has happened is the Sodom and Gomorrah has been destroyed so badly that nobody can today see that place, because God has destroyed it and put it 450 meters below the surface of the earth. और इस शहर को इतना बुरी रीति से परमेश्वर ने नष्ट कर दिया कि कोई भी इंसान आज उस शहर को देख नहीं पाएंगे, इसीलिए कि उस शहर को जमीन के नीचे 430 फीट के नीचे उसको डाल दिया। 450 मीटर, 450 मीटर के फीट के नीचे डाल दिया उसको। Now meter and feet is different, so let us say it's half a kilometer down. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर नीचे, आधा किलोमीटर नीचे। Okay, now let us go and see the nearby places. You have the place called Masada. Masada was a place where Herod built his palace. और उस मृत सागर के पास का जो गांव शहर वगैरह को देखेंगे, सबसे पहले मसाड़ा है जहां पर हेरोद अपना राजमहल बनाया था। And you see Bethlehem here, and you see Capernaum on top, you see Cana there, and Nazareth here. और हम इसमें देखते हैं बेथलेहम भी देखते हैं, फिर कफरनहूम ऊपर में, उसके नीचे काना को भी हम देख सकते हैं। And if you have a chance to go there, have you ever tried reading a book lying on the water? You can do that. और अगर आप लोगों को वहां जाने का मौका मिला तो क्या आप सोच सकते हैं कि पानी के ऊपर में तैरते हो करके आप पढ़ सकते हैं किताब को। So look at this man who is reading a book and he is lying in the water. और इस चित्र में इस व्यक्ति को देख लीजिए कि वो पानी के ऊपर में लेट करके कुछ किताब को पढ़ रहा है।
And you can see that there are so many things which are totally different in that place. You don't see any vegetation because the land is full of salt. और उस जगह का ये खासियत यह है कि वहां पर कुछ भी आपको घास नहीं मिलेगा, इसीलिए कि वो जगह नमकीन है। And the only thing which can be there, maybe even some bacteria, but no fishes live in it. और हो सके कुछ जीवाणु रहते होंगे, लेकिन मछली कुछ भी नहीं है। So this is how the Dead Sea looks like, and the white things which you see are big clusters of salt. और आप इस छवि में देख सकते हैं कि वो मृत सागर इस प्रकार से दिखाई देता है, और जो सफेद रंग का जो देखते हैं वो नमक को दिखाता है। So one thing which you should know about the Dead Sea is, one, God's judgment made a place which was very fertile. You remember, Lord chose that place. और एक विषय को हम याद रखना बहुत आवश्यक है, उस नमकीन जगह को भी परमेश्वर ने चुना और उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया, उसको भी हमको याद रखना है। And that place which Lord saw it was so fertile is today nothing but heaps of sand and dust and salt. और प्रभु यीशु मसीह ने उसी जगह को लिया, और उसी जगह अभी परमेश्वर के नजर में उर्वरता बढ़ गया है। Even today we are living in similar times. There is wickedness all around. और आज के समय में जहां हम रहते हैं और सारे बुराई से भरा हुआ है। And we have to understand one thing, that today when we face these kind of diseases which you have never seen before, God's anger is on the wickedness, and we should not forget that there is God's judgment for sin, and it can come anytime, but this time it is created by a virus which cannot be even seen by the human eye. और हम इस समय में जैसे देखते हैं कि कैसे बीमारियां आते हैं, फैलते हैं इंसान के जीवन में, जो कि उस पाप का नतीजा है। इसीलिए कि बुराई और पाप बढ़ते जाता है तो बीमारियां भी बढ़ते जाता है। और आप कभी नहीं भूलिए कि ये परमेश्वर का जो न्याय मनुष्य के ऊपर आ रहा है, और ऐसा एक समय आएगा कि प्रभु जल्दी ही इस पाप का न्याय करेंगे। So specific gravity of water is 1. और जो जल का अंश हम देखते हैं 1 भाग में। And what is the specific gravity of salt water? और ये जो नमकीला पानी का जो विशेषता क्या है? The salt water density will be 1.3 times, and that is the specific gravity of salt. और ये जो नमकीन पानी के बारे में जब हम देखते हैं तो 1.3 भाग में 3 बार हो सकता है। It is said that the Dead Sea has concentration of salt which is 8.6 times of that of the sea. और समुद्र के साथ साथ इस मृत सागर का जो लगभग है 8.6 बार में लिया गया है। So you know that what is there is something which is from the hand of God on wickedness. और उस बुराई के संबंध में परमेश्वर का जो न्याय है बहुत ही बड़ा उंडलने वाला है। Now what is going to happen? What happened at the time of Noah? There was wickedness. There was that kind of wickedness. At the time of Lot, there was that kind of wickedness. And today there is wickedness. But God is a judge, and he will judge the sin of all people who are wicked. नूह के समय के बारे में हम जब देखते हैं तो उनके समय में भी सारा दुनिया बुराई से भरा हुआ था और परमेश्वर ने उनका न्याय किया। और लोत के समय में भी जब देखते हैं तो सदम गुमोरा में किस प्रकार से बुराई
को परमेश्वर ने नष्ट किया, आज के दुनिया में भी परमेश्वर उस बुराई को देख करके नष्ट करने वाले हैं। So that much of the Dead Sea, and now let's go back to chapter 4 of Luke. और आज के लिए इतना ही है उस मृत्यु सागर के बारे में। तो आइए आज के मनन के लिए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में जाएंगे। So let's go to Galilee. आइए हम गैलीली में चलेंगे। And that was a place where he started his ministry. और गैलीली उस जगह है जहां से प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई को शुरुआत किए थे। It was his own land. वो आपने उन्हीं का शहर था। And he went to that land so that he thought that the audience would listen and be kindled by his messages. और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए गलील में गए क्योंकि उनका शहर है, तो इसीलिए उनका वहां का लोग उनका जो संदेश को मन लगाए करके सुनेंगे। So what happened in that place? Let us see. He began in the synagogue, and the synagogue was the central place of religious life in Palestine. और आइए हम देखेंगे यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का साथ क्या घटना हुआ। और जब वहां पर गए तो गलीली एक जो रिलीजियस धार्मिक लोगों का एक सेंटर था। And we see that he started in the synagogue, and there was only one temple, and there were many synagogues. और गलीली में एक ही मंदिर था और बहुत सारे आराधनालय थी। No, there was only one temple. You know where that temple was? It was in Jerusalem, and there were synagogues in every place, in every town and village. और पैलेस्टाइन में यरूशलेम में ही एक ही मंदिर था और भिन्न भिन्न जगह में केवल आराधनालय जो यहूदी लोगों का आराधनालय था। And we see that there was 3 parts of a synagogue service. और हम ये भी जानते हैं कि उस आराधनालय का यहूदी लोगों का आराधनालय का 3 भाग है। So the synagogue service will start with a worship part in which prayer was offered. और सबसे पहली बात है जो आराधना करने का जो भाग है जहां पर प्रार्थना को चढ़ाते हैं। The second part was the reading of the scriptures. और दूसरी भाग है जहां पर परमेश्वर का वचन को पढ़ते थे। And 7 people from the congregation read during the reading of the scriptures. और जब वो लोग परमेश्वर का वचन से पढ़ते थे तो वो लोग 7 लोग पढ़ते थे। And third was the teaching part. And in the synagogues, one person gave the address that day. और हम तीसरा भाग में देखते हैं वहां पर एक व्यक्ति सबको शिक्षा देता है। So the synagogue and its platform was open to Jesus, and it was his stage now. और प्रभु यीशु मसीह के लिए यहूदी लोगों का आराधनालय खुल गया था और प्रभु यीशु मसीह जाकर के वहां पर अभी शिक्षा दे सकते हैं। And we saw the 5 things which was prophesied by Isaiah the prophet, which we read in 4:18, which we considered in depth last class. और 4 अध्याय उसका 18 वचन में हमने देखा कि ईसाया नबी के द्वारा जो 5 भविष्यवाणी किया गया था उस विषय को भी हम पिछले क्लास में देखा था। You remember which are the 5 things? क्या आप लोगों को याद है कि कौन कौन सा 5 बातें हैं या ईसाया नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था? Yeah, anybody? कोई भी भाई या बहन है तो बोल सकते हैं अपने अनम्यूट करके। Okay, I will tell you. Yeah, please, प्रभु का brother. आत्मा मुझ पे है कि अंधों को आंखें खोलूं, बंधनों के बंधन खोलूं। Yes, excellent. So one was to preach So first was to preach the gospel to the poor. Okay, सबसे पहली बात ये था कि उस गरीब लोगों के सामने में सुसमाचार को प्रस्तुतिकरण। Second was to heal the broken-hearted. और जो टूटे हुए हृदय को उनको चंगाई देना।
and to proclaim liberty to the captives was the third point. और जो बंदवाई में है उन लोगों को उस स्वतंत्रता का जो संदेश देना। And the fourth one was recovery of the sight to the blind. और एक अंधे का आंख को पुनर्स्थापना करना। And the final thing was to bring liberty to those who were oppressed. और जो लोग दुखी थे और जो लोग सताए गए हैं उन लोगों को चंगा करना या उन लोगों को भी स्वतंत्र करने के बारे में देखा। In verse 20 we see that he closed the book, but it was a scroll, so probably there's a little bit of a translation mistake here. So it was rolls or scrolls which were used, and he gave it back to the person in the synagogue, and he sat down, but he did not stop there. He started preaching. और 20 आयत में हम देखते हैं तब प्रभु यीशु मसीह ने उस पुस्तक को बंद कर दिया। पुस्तक मतलब उस जमाने का जो रोल टाइप था, उसको रोल करते थे, उसको एक व्यक्ति को दे दिया। और यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह बंद नहीं किए, लेकिन वो और भी प्रचार करना शुरू किए। And in verse 20 we see that eyes of all of them that were in the synagogue were fastened on him. और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। And he said, this day is this scripture fulfilled in your ears. और वो ये बात भी बोला, आज यह लिखा तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। And just imagine, this is the day which God had planned in all eternity, and this is the day that the Lord has made, and the Lord himself is reading from that portion and saying, this word is fulfilled today. और यही दिन है जो परमेश्वर ने अनंत काल से अनंत काल तक निर्धारित किए थे, और उनका वचन आज पूरा हुआ। और यही दिन है जिसमें हम परमेश्वर में खुश रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन को बनाया है। Even though they wondered at the gracious words which proceeded out of their mouth, there was a mind problem and a heart problem. और सबने उसके सहारा और जो अनुग्रह की बातें उससे मुंह से निकली थी, उनसे अचंभित हुए। And then we see that there's a question. What is that question? और यहाँ पर एक सवाल देखते हैं, वो सवाल क्या है? Is it not Joseph's son? और वो ये कहते हैं, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? And that is where we see that Jesus has to answer, what verily I say unto you, in verse 24, no prophet is accepted in his own country. और प्रभु यीशु मसीह उस सवाल का जवाब देते हैं, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। Even though they had this vision and they had heard him and they held him in high reputation, there was this doubt, oh, is he not Joseph's son? और ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह का जो सेवक है वो प्रचार करने के बारे में देखा, उनका जो दर्शन के बारे में देखा, वचन से कैसे बात किए, ये सारे बात को देखते हुए भी उनके जीवन में एक सवाल पैदा हुआ और बोला, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? Who put this question in their hearts? You only know. You know. और आप जानते हैं कि ये जो सवाल उनके हृदय में किसने रखा है? The questioner, the tempter. और जो को सवाल पूछने वाला है कि वो प्रलोभन लाने वाला व्यक्ति है। So you know that this period of the ministry of Jesus in Galilee was called the Galilean springtime. और प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई गलीली में उसका समय सीमा को ये भी कहते हैं कि गलीली का जो बढ़ोतरी और उर्वरता को दिखाता है। And he came as a very fresh air, and that could be sensed by the men. और वो जब आए उनके बीच में तो वो लोग अच्छा एक हवा को महसूस कर सके। Men's hearts were hungry for the word of life. और इंसान का जो हृदय परमेश्वर का वचन के लिए बहुत ही भूखा थे।
And the man with the message was there, and he will always command an audience if you are a man with a message. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से वचन के अधिकार से बोला, तो जो व्यक्ति परमेश्वर का सेवा करता है, वचन का सेवकाई करता है, तो वचन के अधिकार से वो श्रोता लोगों को बताते हैं। If you kneel to the Lord in prayer, अगर आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने आएंगे and meditate on his word day and night, और परमेश्वर का वचन को रात और दिन मनन करेंगे, he will bless you with the blessing of knowledge and understanding. वो आपको बुद्धि और ज्ञान से और जानकारी से भरपूर कर देंगे। And only then you can command an audience, and God will work through you, and you will touch the hearts like Peter did on that day of Pentecost. 3,000 came to the Lord. और जब परमेश्वर आपको उस बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर देते, आशीषित करते हैं, तो आप वचन के आधार पर, वचन के शक्ति से और अधिकार से आप श्रोता लोगों को कह सकते हैं, जिस प्रकार से पतरस भी एक दिन में 3,000 आत्मा को जीता। You always see that Jesus went into the synagogue on the Sabbath day. How many times we have seen that? He went to the synagogue on the Sabbath day. और प्रभु यीशु मसीह को सावत दिन में उस आराधनालय में जाते हुए हम कितना बार देखते हैं सुसमाचार में। And what happened is, he always was there on the time which is prescribed in the Jewish religion, that when you have to be there in the presence of God, you have to be found there. He never missed a Sabbath. और यहाँ पर हम देखते हैं यहूदी का जो परंपरा रीति रिवाज के अनुसार में कि सारे यहूदी उस सावत के दिन में आराधनालय में उपस्थित होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी ठीक उसी प्रकार उपस्थित थे, कोई भी सावत को वो इनकार नहीं किया या अनुपस्थित नहीं रहा। We don't observe a Sabbath, but we set apart our Sundays for him, the first day of the week. और हम सबत को नहीं मानते हैं, लेकिन हम आराधना करने के लिए जो इतवार को जो हम समय अलग किए गए उसके लिए हम इकट्ठा होते हैं। So if you're very serious in this matter, let me tell you, if you're very serious in this matter, before the COVID time, you would be able to count the number of Sundays you would have missed, and you will know it very well. और इस कोविड-19 बीमारी के जो लॉकडाउन के समय में अगर आप उस इतवार को लेकर के बहुत गंभीरता से सोचते हैं, तो आप लोग शायद उसको गिने भी होंगे। If you have a desire that I will never miss a Sunday, God will help you not to miss a Sunday. अगर आप परमेश्वर के सामने अपना इच्छा ये प्रस्तुत करते हैं कि प्रभु मैं कोई भी इतवार को नहीं खोना चाहता हूं, तो प्रभु आपको सहायता करेंगे। And he went with great desire to Nazareth to preach to them. और वो नासरीत में बहुत ही एक इच्छुक के साथ नासरीत में प्रचार करने के लिए गए। Nazareth was not a village, it was something like a metropolis or a town or a city which had 20,000 people. और नासरीत एक गांव नहीं था, लेकिन वहां का जो लोग थे और वो एक शहर है। And when Jesus came into the synagogue and he preached and he told things which were not very palatable to them, they got irritated and angry. और जब वो आराधनालय में जाकर के प्रचार करने लगा, तो लोग उसको सुन करके वो लोग हजम इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही एक प्रायोगिक जीवन में लागू करने के बात था। And Jesus sat down and started preaching, and he came to save the whole mankind, and that was a problem for the Jews. और जब प्रभु यीशु मसीह बैठ करके शिक्षा देने लगा और उसी वक्त कहा कि वो इसलिए आए हैं कि सारे मनुष्य जाति को छुटकारा देने के लिए, वही उन लोगों को चिड़चिड़ापन उत्पन्न किया। What angered the people was the compliment the Lord started giving to the Gentiles. और जब इन लोग गुस्सा हो गए, प्रभु के वचन से सुन करके गुस्सा हो गए और उनके विरोध क्रोध किए, तो धीरे से प्रभु यीशु मसीह वही जो सौभाग्य को गैर यहूदी लोगों यानी अन्य जाति को दिया। You see verse 26, he says that Elias
was sent to save a widow in the city of Sidon, and it was a woman who was a widow. और इसमें 26 आयत में देखते हैं, पर एलीजा उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारेफत में एक विधवा के पास भेजा गया था. So they believed that God had created the Gentiles to be a fuel for the fires of hell. और ये बिलीव करते हैं कि विश्वास करते हैं कि अन्य जाति लोग परमेश्वर के उस आग के लिए जो तेल बनाए गए हैं, जो आने वाले आग का जो दंड के दिखाता है. So they were supposed to be a fuel for the fire of hell. और वो लोग अन्य जाति लोग उस आने वाले आग के झील का जो तेल के बारे में दिखाते हैं. So that was there in their minds, and here was this young Jesus, 30 years old, a carpenter who was worked among them, and he's preaching as if the Gentiles were the favored by God. और यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो जो 30 साल का एक व्यक्ति होकर के उनके सामने में प्रचार करते हैं, और उनके प्रचार में जो अन्य जाति लोग भी सुन के बहुत खुश हो जाते हैं. And this was something which they could never dream about, and this was a new message which this man was preaching. और वो ये उनका ये उम्मीद कभी नहीं था कि वो इस प्रकार से का मैसेज को सुनेंगे, लेकिन वो लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुन करके बहुत ही अनुग्रह प्राप्ति महसूस किए. It was a message of love. ये प्रेम का संदेश था. It was an inclusive love, not to let out the Gentile, but also carry the Jew along with the Gentile into the kingdom of heaven. और ये वो प्रेम है जो एक किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे यहूदी और गैर यहूदी सब लोगों को इस प्रेम से बांध करके ले जाना है. John the Baptist was the preacher of doom, and at his message men shuddered with terror. और योना बपतिस्मा देने वाला जो पतन के जो आने वाला जो क्रोध का बारे में प्रचारक कहलाता है, और उसका प्रचार को सुन करके सारे मनुष्य लोग बहुत ही अचंभित हो गए, डर भी गए. Jesus brought the gospel, which is the good news, and to know that a loving God loves you and me, and you can call him Father. और प्रभु यीशु मसीह एक प्रेम का संदेश को लेकर के आया, एक अच्छा संदेश को लेकर के आया, जो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं. And और then उसके द्वारा आप परमेश्वर को आबा पिता कह सकते हैं. see what his own people did to him. So you should not be very surprised if some people who are very close to you do this to you. और देखिए यहाँ पर वो अपने लोगों ही प्रभु यीशु मसीह के विरोध में क्या किए, और कभी भी आप चौकित नहीं होना कि आपका जो क्लोज रिलेटिव्स लोग, रिश्तेदार लोग भी आपके साथ ये कर सकते हैं. See, please read verse 27. One more Gentile was mentioned there, and that fueled the fire of their anger towards Jesus. और हम 27 वचन में पढ़ते हैं, और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, और सीरियावासी नामान को कोड़े उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया. A Jew would never go to a leper. और एक यहूदी उस कोड़े के सामने कभी नहीं जाते हैं. A leper's place was outside the camp. और उस कोड़े का जो रहने का जगह है वो छावनी से बाहर रहता था. And the laws of the time was like COVID times. और उस कोविड-19 में जैसे अलग रखते हैं, उसी समय भी कोड़ी को भी अलग रहते थे. So if you read the Old Testament, you'll find that they were to cover their face with a cloth like a mask. और आप पुराने नियम में जब पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो लोग मुंह में एक कपड़े के साथ बांधना चाहिए, जैसे आज के दिन में मास्क को देखते हैं. And they were to observe social distancing. और वो लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि जो सामाजिक दूरी बना करके रखना है.
And they have to cry out, unclean, unclean, don't come near me, don't come near me. और उन लोगों को ये भी चिल्लाना है कि अशुद्ध अशुद्ध, आप मेरे पास मत आओ। And here we see that he is talking about Elisha, who was sent by by God, and he cleansed the Syrian. A Syrian is not a Jew, and his name was Naaman. और यहाँ पर देखते हैं एलीशा भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति किया गया भविष्यद्वक्ता है, और सीरिया के एक व्यक्ति को, नामान को वो चेंगा करते हैं। सीरिया एक गैर यहूदी लोग है। So if you look at Naaman the Syrian, he was somebody who was liked by any Jew. और सीरियन का जो नामान को के बारे में हम जब देखते हैं तो उसको कोई भी यहूदी पसंद नहीं करते थे। So he's talking about Sidon, he's talking about Syria, and these Jews who are the Israelites were very cut up. And please read verse 28 and 29 and 30 to understand what the people of his own did to him. और हम ये बातें भी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस सीरिया के बारे में बात करते हैं, सीदोन के बारे में बात करते हैं, और 28, 29, 30 वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का स्वयं उनका जो घर वाले हैं, उनका जो जाति का लोग उनके विरोध में क्या किए हैं, हम इन 3 वचन में देख सकते हैं। Please read, brothers. Somebody can help brother in reading this portion. ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उस नगर से बाहर निकला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। So where were the people? They were in the synagogue. और लोग सब कहाँ थे? वो लोग आराधनालय में थे। They were in the right place. वो लोग वो सही जगह पर थे। And they were hearing the right things. और वो लोग सही शिक्षा को सुन रहे थे। But their hearts was filled with the wrong thing. लेकिन उनका जो हृदय सारे बुराइयों से भरा हुआ था। They were filled with wrath. और वो लोग सब क्रोध से भर गए। And when in the temple or in the synagogue or in the assembly hall, sometimes you are also filled with wrath. और आराधनालय में और कलीसिया में और जो कांग्रेगेशन मंडली में भी कभी-कभी आप लोग और हम लोग भी क्रोध से भर जाते हैं। And whenever this anger happens, check it and nip it in the bud and sit there where you are and don't rise up in anger. और जहां भी कभी आप लोग इस प्रकार से क्रोध से भर जाते हैं तो आपको बैठ करके देखना है और उस क्रोध को आगे बढ़ने के लिए नहीं देना है। They rose up, they thrust him and took him to the brow of the hill, and then they tried to push him down. और प्रभु यीशु मसीह के वो लोग आराधनालय से धक्का मार के वो लोग निकाल करके उस पहाड़ के ऊपर में लेके गया ताकि उस ऊपर से उनको नीचे गिरा दे। It is Psalm 134, 33 and 34 where we read about the unity of the brethren. और हम भजन संहिता 133-34 के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक भातृ या भाई लोगों का जो एकता के बारे में हम पढ़ते हैं। So you see there's a beauty in unity. और एकता में सौंदर्य है, सुंदरता है। And it is so dreadful to think what happens when the anger rises up within brethren. और जब भाई लोगों के सामने इस प्रकार का क्रोध जब आता है तो ये किस प्रकार हम देख सकते हैं। They take up some reason and then they start talking, slandering their own brethren. और जब कोई भी एक छोटी सी बात अगर होता है तो एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। And they start using force.
और वो लोग उसके विरोध में भी और उसको जबरदस्त भी करने के लिए कोशिश करते हैं and they start pushing people out of the assembly. और असेंबली के बाहर से वो अंदर से उनको और धक्का मार मार के बाहर निकालते हैं And instead of seeing the pleasantness of dwelling together, we see the pushing of anger. और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि भाई लोग एक भाईचारा का प्रेम में बंधने के बदले वो लोग एक दूसरे को झगड़ा करके उस आनंद से उस हर्ष को हटाना चाहते हैं Psalm 133 and verse 1 says, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." और हम भजन संहिता 133 और उसका एक आयत में जब देखते हैं तो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं 1 second sir Yeah, somebody else can read and help because that gives little bit of relief for brother. ओके तो इसमें हम ये देखते हैं देखो यह क्या ही भली और मनोहर बातें हैं कि भाई लोग आपस में मेल रखे Just imagine if the people who are so impressed with the talk of Jesus would have given him a shake hand and said, "Oh, Jesus, so happy to hear you." There was nothing of that sort. Instead of this clasping hand, they had the clenched fist. और यहाँ पर देखते हैं अगर ये जो भाई लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का संदेश को सुना अगर ये प्रकार का जो मेल मिलाप अगर आपस में रखते तो प्रभु यीशु मसीह को आकर के हाथ मिला करके कहते भाई आपने बहुत अच्छा संदेश दिया लेकिन उसके बदले में वो क्या किया क्रोध से भर करके प्रभु यीशु मसीह को आराधनालय से बाहर निकाल दिया Read verse 3, last part, brother, which says that for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. 33 and verse 3. 133, we are reading that psalm. Let us read the third verse, the last part. Okay, हम इसमें ये पढ़ते हैं हाँ पढ़ो भाई के पहाड़ों पर गिरती है यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है Yeah, so there is a blessing which is commanded by the Lord. और इसमें हम आशीष देखते हैं जो कि परमेश्वर ने उस आशीष को के लिए आज्ञा दिया है And this is a blessing which is given to the Lord's people. और यही आशीर्वाद है आशीष है जो परमेश्वर का जन को दिया गया है And this is something where there is so much of happiness and blessing which comes when people are united and of the same mind like that in Christ Jesus. जब भिन्न भिन्न लोग प्रभु यीशु मसीह में एकता में बने रहेंगे तो आशीष और खुशियां से भर जाएंगे And there is happiness and joy, and instead of hatred and pushing and fisting the person. और जब ये बातें हम एकता में बने रहते तो आनंद और खुशी से भर जाते हैं और हमारे जीवन में कोई एक दूसरे को खिलाफ बोलने के लिए साहस नहीं करते हैं This psalm talks about the precious ointment and the dew of Hermon. और यहाँ पर हम देखते हैं उस बहुमूल्य उस सुगंध तेल के समान हम देख सकते हैं And the dew of Hermon. Just read, brother, that verse 3, the first part of 133 verse 3, the dew of Hermon. और जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसके दाढ़ी पर बहाकर उसके वस्त्र की No, don't go to the dadi. We'll stay with the dew. ओके इसमें हारून के सिर पर देखते हैं उस ओस के समान है जो सियोन की पहाड़ों पर गिरती है यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है Yes, brother. So thank you. So let me explain. The dew is, have you seen dew? When there is very cold days or little in the night, there is condensation which happens, and you will see a leaf having a little drop of water, and the sun falls on it, and there is a beauty in a dewdrop. Have you seen that? क्या आप उस ओस कैसा गिरता है ऊपर से अगर एक पत्तियां में से भी देखते हैं ना जब गर्मी का जो चालू हो जाता है थोड़ा थोड़ा नीचे गिरने लगता है क्या आप उसको देखा है So when the light passes through the drop of water, it is a beautiful sight which I will show you a picture of a dewdrop and then you'll understand.
और जब इस उस ओस का जो बूंदे नीचे टपकती है तो रोशनी जब निकलता है दिखाई दे है तो बहुत ही सुंदरता दिखाई देता है। And you read about the ointment which was fragrant. और हम उस उत्तम तेल के समान के बारे में भी हम देख रहे हैं। And when you put on a fresh perfume on your body, it can be sensed, it can be understood that there is something which is good. और जब हमारा शरीर में हम जब परफ्यूम को लगाते हैं तो जो घिनौना गंध को क्या करता है, सुगंध में बदल देता है। And it will fill the place, and that fragrance would be infectious. और उस जगह को, जिस जगह में ये परफ्यूम लगाया गया है, उस जगह भी सुगंध से भर जाता है। So when you are next time in the house of God, you should be able to be a fragrant ointment or like a dewdrop. और आप लोग भी जब परमेश्वर का जो आराधनालय में आप आएंगे तो आप लोग भी अपने आप को इस प्रकार से बनाइए ताकि दूसरों लोगों के लिए आप भी उस परफ्यूम के समान हो जाए। So I will show you a kind of a dewdrop now, and you can see how it looks like when you see it in the morning sunshine. और अभी मैं आप लोगों के सामने उस ओस के बूंदे को दिखाऊंगा कि सुबह में कैसा सुंदर दिखाई देता है। And can you see this on the screen now? Yes, sir. So this is the dewdrop. It shines in the sun and it creates joy, and it is a means of moisture and water for the roots. और ये जो चित्र में आप देखे होंगे, देखा है कि जो ओस का जो बूंदे कैसा नीचे टपकती है और टपकते समय ही उस सूर्य का जो रोशनी आता है तो कितना सुंदर दिखाई देता है। So these people did not have that experience of fragrance. They only had badbu. They did not have khushbu. और ये व्यक्तियों के बारे में, ये लोगों के जीवन में हम खुशबू नहीं देख सकते हैं, लेकिन खाली बदबू ही देख सकते हैं, बदबू ही आ रहा है। Yeah, and then what did Jesus do? Jesus, in verse 30, he passed through the midst of them and went his way. और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि उनके बीच से वो निकल कर चला गए। He is out of the synagogue. ना अभी हम देखते प्रभु यीशु मसीह को उस आराधनालय से बाहर। He is unhappy. वो खुश नहीं है। He has to escape from the midst of them. और वो उस भीड़ लोगों से वो छूट करके चले जाना था। The Lord said, "Blessed are the peacemakers. You join together the broken pieces. You work towards the unity, and thou shalt be blessed because you are called the peacemakers." और प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश में ये कहा गया है, धन्य है जो शांति बनाने वाले, क्योंकि आप शांति बनाते हैं तो परमेश्वर का आशीष होगा। Jesus came to give us peace. प्रभु यीशु मसीह हमको शांति देने के लिए आए थे। And in chapter 5 of Matthew, chapter 5 and verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Here we see pushers of Jesus and not peacemakers. और इसमें हम उस प्रभु यीशु मसीह को धक्का लगाने वाले को देखते हैं, ना वो शांति कारक लोगों को देखते हैं। He came into his own house, वो अपने घर में आए, but they received him not. लेकिन वो अपने घर वाले उनको स्वीकार नहीं किए। He came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught there on the Sabbath days. और वो उस साबत दिन में कफरनहूम गलीली में आकर के वचन का सेवकाई करने लगा। And here comes, he is in the synagogue, and there was a man with a unclean spirit, and it's called unclean devil, and cried out with a loud voice.
और जब वहां कफरनहूम में आए तो वहां पर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित से एक व्यक्ति को देख रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को देखते ही वो चिल्लाने लगा। Jesus came to Capernaum, he taught, and they were astonished at his teaching because his speech was with authority. और प्रभु यीशु मसीह अभी कफरनहूम में आए, आराधनालय में जाकर के प्रचार किए, शिक्षा दिए और लोग उसको सुन करके बहुत चौंकित हुए, इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ के साथ और अधिकार के साथ शिक्षा दिए। This devil, unclean devil, recognized the Lord. और ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। He says, "You are Jesus of Nazareth." आप यीशु नासरीत के यीशु को कह करके बुलाया उनको। And he says something more, that I know who thou art, the Holy One of God. और वो ये भी कहा कि मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। The Holy One of God. Who is saying that? इसमें कौन कह रहे कि हैं परमेश्वर का पवित्र जन है? Jesus did not want the praise or the recognition of the devil. और प्रभु यीशु मसीह उस शैतान का जो रिकॉग्निशन के जान पहचान को नहीं चाहता है। He said, "Shut up. और उसने क्या किया? चुप करो। Hold thy peace and come out of him." और उसमें से उन्होंने ये कहा, डांट कर कहा चुप रहो और उसमें से निकल के जाओ। All these people who are these who practice witchcraft and all those people, they do a lot of magic and voodoo to get the devil out of a person and the evil spirit out of a person. We see in many parts of India. और हम इंडिया भारत के सारे जगह में जब हम देखते हैं तो बहुत सी ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा से ही निकलने के लिए कोशिश करते हैं, जो लोग की जादू टोना करते हैं। And the Holy One of God just had to utter a few words and there came out the devil. But when he came out, the devil did a very bad thing. What did he do? He threw him in the mist. He threw him. और हम इसमें देखते हैं कि जब परमेश्वर का जन उस दुष्ट आत्मा को एक शब्द कहते हैं कि निकल जा, तो वो कितना शक्तिशाली है और निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर उस दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के खिलाफ में बहुत ही एक कार्य किया कि वो अपने आप को उनके सामने में गिरा दिया। And the person who was thrown was caught by the Lord and taken to his bosom. और जो व्यक्ति अपने आप को उस दुष्ट आत्मा के नियंत्रित से फेंक दिया, तो उसको प्रभु यीशु मसीह ने उठा करके अपने ही उस सीने पर लगा लिए। And they kept saying to each other, "What word is this? He gives orders to unclean spirits with authority and power, and they just come out." और यहाँ पर इस बात को सब लोग सुन करके देख करके अचंभा हुए और आपस में बात करने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ का साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वे निकल जाते हैं। The Egyptians, they believed there were 36 different parts of the human body, and any of them could be entered and controlled by one of the evil spirits. और मिस्र का लोग ये विश्वास करते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो 33 भाग है, जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा घुस करके उस व्यक्ति को पूरा नियंत्रित कर सकता है। But Jesus can handle them all, and Jesus can pull them out and make a man whole. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक ही वचन के साथ शुद्ध करके उनको अपने नियंत्रित में रख सकते हैं। So the rabbis, when they taught, they always supported their teachings by saying there is a saying that or something they'll refer. And the prophet said, they said, "Thus saith the Lord." So the rabbis and the prophets used to always refer to something and say, "This is the truth." और जब उस यहूदी लोगों का जो गुरु लोगों के बारे में हम जब देखते हैं, तो वह लोग ये कहते हैं कि
परमेश्वर के वचन में यह लिखा है और वो परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है करके उन लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और ये ही सच्चाई ये कहते थे। Theirs was a delegated authority, but for Jesus, he had the authority. He was the authority incarnate, and he was a man who spoke as one who knew. और यहाँ पर देखते हैं कि जो गुरु लोग वो किसी और के जो अधीन में रह करके जो अधिकार समाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो उस अधिकार को ले करके इस दुनिया में अवतार ले करके आए हैं और अधिकार के साथ अपना वचन को पेश करते हैं। So then he does a miracle in a small cottage. In verse 38 and 39, we see that Jesus left the synagogue and came to Simon's house, who was in the grip of a major fever. और हम 38 से 40 तक हम जब देखते हैं तो एक छोटा सा घर में एक और अचंबा या एक और जो मिराकल होता है हम देख सकते हैं पतरस के घर में। And he stood over her. पतरस के सासू के घर में हम देखते हैं कि उनके सामने जाकर के वो खड़ा हुआ and rebuked the fever, which was a great fever, which is recorded by Dr. Luke. So it was a great fever. It maybe she was close to death. और हो सके कि वो मृत्यु के पास में हो सके, ये जो बीमार था, ये जो बुखार था, क्योंकि ये जो लेखक डॉक्टर लूक ने लिख रहे हैं तो उसका मतलब बहुत ही बड़ा बीमार हो सकता है। And there are three great truths about this short incident. That first one was Jesus was always ready to serve. और इन बातों में इस चमत्कार में हम तीन बातें को देख सकते हैं। पहली बात है प्रभु यीशु मसीह हमेशा दूसरों को सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। When we leave our Sunday meetings, the first thing we all look forward is to have a nice lunch at home. और जब आराधना के समाप्ति के बाद हम सबसे पहले अच्छा एक लंच का इंतजार करते हैं। But after the meeting, he went to serve. लेकिन उस मीटिंग के बाद, उस सेवकाई के बाद में वो सेवा करने के लिए चले गए। He did not complain. He was tired, and I'll see you 4 p.m. I'm giving you appointment, so you bring her to me to my house. So I will look at her that time. Let me sleep for 3 hours. प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं अभी थक गया हूँ, सेवा करके थक गया हूँ तो अभी नहीं कर सकता हूँ, तो आपको मैं एक अपॉइंटमेंट समय देता हूँ, 4 बजे आ जाना, उससे पहले मैं 3 घंटा में आराम करूंगा। He is the great doctor who is ready to serve, and we thank God for doctors in our midst who are ready to serve like Jesus. और उस महान डॉक्टर के वैद्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, और बीच में हमारे बीच में जो भाई लोग डॉक्टर हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो लोग सेवा टहल करने के लिए तत्पर रहते हैं। And he was ready to serve, and he did it with lot of joy. And what happened is the second point. Jesus did not want a crowd to work a miracle. He could do it inside a cottage. He was not seeking glory unto himself. और दूसरी बात इस आश्चर्य कर्म की दूसरी बात हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ में नहीं करना चाहते हैं, भीड़ों को नहीं। Yeah, brother, are you there? Are you there? Yeah, so what I was saying is Jesus did not need a crowd to work a miracle. Somebody else please take over. We have just few minutes left. Yes, sir. Yes, brother Jagvir, please. Yes, sir. Yeah. So Jesus did not need a crowd to work a miracle, and he put all his power and he did it quietly. And we see the third point. Jesus cured the Peter's mother-in-law, and she immediately began to serve him. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास को चंगा छुआ और उनको चंगा किया। वो तुरंत उठ के बैठ गई। प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ एक कार्य करते थे। She just got up and went to the kitchen and served Jesus and his disciples. और वे तुरंत बिस्तर से उठ के वो रसोई में जाती हैं और प्रभु यीशु मसीह और चेलों के लिए कुछ खाना तैयार करती हैं। Mothers are always like that. और माताएं हमेशा इसी प्रकार से सेवा करती हैं। They run to the kitchen so that they may feed their families.
वे जल्दी से किचन की ओर दौड़ जाती हैं ताकि वे अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करें। Many have been given a second innings in their life after serious illnesses. और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को प्रभु ने गंभीर बीमारियों से चंगा किया है। And the precious gift of health and strength is given that you may serve him. और परमेश्वर ने उनको जो सबसे अच्छा जो स्वास्थ्य का जो वरदान है उनको दिया है ताकि परमेश्वर की वो लोग अच्छे से सेवा करने पाए। And they brought all kinds of sicknesses filled people to him, and he laid his hands upon each one of them and cured them. और लोग नाना प्रकार की बीमारियों वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते थे और प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ उन पर रख के उनको चंगा किया करते थे। And we see that we come to the end of that chapter 4, when the sun was setting, he laid his hands upon every one of them and healed them. और हम लोग इस लूका 4 का 40 में हम पढ़ते हैं, सूरज के डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे उन पर हाथ रख के उनको चंगा किया प्रभु ने। And you see verse 43, this is the first mention of the kingdom of God in Luke's gospel. Please read, brother, verse 43. 43 वचन में कि मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूँ। इस बात का पहली बार यहाँ पर जिक्र किया गया है। In the past, the kingdom of God was all Abraham and Isaac and Jacob were in the kingdom. और परमेश्वर का जो राज्य था वो अब्राहम में और याकूब और इसहाक के नाम से ही जाना जाता था। But today in Luke chapter 17 and verse 21, we read that the kingdom is within you or among you. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं लूका में 7 का 71 में कि परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। And the kingdom of God is within you. See, there is a change from the past to the present and the future. It is going to be something which God will still give to men. And that's why when we pray, thy kingdom come. और आप देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर है। पहले अब्राहम और इसहाक याकूब का राज्य हुआ करता था, लेकिन आज वो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। Thy will be done in earth as it is in heaven. और हम लोग वो प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा हमारे अंदर पूरी हो। The kingdom of God is a society upon earth where God's will is perfectly done. और परमेश्वर का जो इच्छा है परमेश्वर के समाज में पूरी रीति से जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही होती है। So there is the kingdom which is established and the kingdom which is going to come. और जो राज्य की स्थापना की गई है और जो राज्य आने वाला है वो तुम्हारे बीच में आ चुका है। And let us pray that God's will be done, and we may pray, Lord, bring in thy kingdom beginning with me. और हम लोग ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु अपने राज्य को मेरे भीतर मेरे बीच में लाइए। In chapter 5 he comes to another place and we see that he is asking his blessed disciple, and as he stood by the lake of Gennesaret, Peter, Peter, give me your boat. और हम लोग आगे के जो अध्याय में हम आएंगे 5 अध्याय में, वहां पर प्रभु गलील में जाते हैं और वहां पर गनेसरत गांव में, और वहां पर पतरस को कहते हैं, पतरस मुझे अपनी नाव दे दो। So he asked for a Peter ship for want of a better pulpit. और वो प्रभु यीशु मसीह पतरस से अपने लिए एक मंच के लिए नाव को मांगते हैं। I remember people of old who used to stand on a wooden box and preach the gospel, and here we see preacher preaching from a wooden boat. और लोग अपने लिए लकड़ी के बहुत अच्छे अच्छे मंचों से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हमारे प्रभु पतरस की नाव को मंच बनाकर लोगों से बात कर रहे हैं। And he taught the people out of the ship. He taught the people out of the ship. Pardon, sir? He taught the people out of the ship. और वो यहाँ पर लोगों को प्रचार नाव के बाहर से करते हैं। And many people were listening, and then what Jesus says after that is very interesting, and says that, Simon, you launch your net into the deep
and let down your nets for a draught. And Simon says, we toiled all night, we got nothing, but still a divert, I let down the net. और वहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह के जो वचन को सुन रहे थे और सुनते हुए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा अपने जाल को झील में डालो। After Christ has done the preaching, now he tells Peter to apply himself to his business of his calling. He says, launch out into the deep and let down your nets. और वो प्रचार उपदेश देने के बाद उन्होंने पतरस से कहा कि पतरस अपने जाल को गहरे में ले चल। And here he wanted the people to work, and the time spent on the weekdays, it was on working, and he told them, you do what I tell you and I will bless you, and he got the blessing of his life. Can you imagine what he got? ये कार्य करने का दिन था और लोगों से कहा आप कार्य करते रहो और मैं आपको आशीष दूंगा। The net broke and they had 2 boatfuls of fishes, and that was the present or the wage for giving out the boat to Jesus. और ये देखिए जब हम उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव दे दी तो वहां पर हम देखते हैं उनके जाल फटने लगे और 2-2 नाव मछलियों से भर गई। We have toiled all night, Lord, we have not got anything. और वहां पर सिमोन पतरस कहते हैं हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की पर कुछ ना पकड़ा। But he says, cast your net, now I'll help you. लेकिन उन्होंने कहा अभी अपने जालों को डालो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। How ready was their obedience to the command of Christ. आप देखिए वो चेलों ने कितनी प्रभु की बात मान के और यीशु मसीह की बात को माना। So out of nothing he created 2 boatfuls of fishes, and I'm sure they had fish curry that night and they enjoyed some fish fry as well. And Lord will honor the labor of our hands after we have listened to his word and received his word. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना और उन्होंने रात्रि में बहुत मेहनत किया लेकिन कुछ ना पकड़ा, लेकिन प्रभु की बात को मान के उनकी 2 नाव मछलियों से भर गई। मैं विश्वास करता हूं उस दिन उन्होंने बहुत अच्छी मछली की सब्जी बना के आनंद लिया होगा। God in the Old Testament blessed Obed-Edom for just keeping the ark in his house, and God blessed him abundantly. Today, let your boats, let your things be given to Jesus, and Jesus will bless you in every way with all spiritual blessings. He give you happiness and joy, and he will really reward the labor of your hands. और हम देखते हैं इजराइल में जब एक व्यक्ति के यहाँ पर जो परमेश्वर का संदूक आया तो परमेश्वर ने उस पूरे घराने को आशीष किया। प्रिय भाइयों बहनों, आज भी आप अपनी नाव प्रभु के हाथों में दे दीजिए और प्रभु आपको आशीष करेंगे। We see Peter falling at the feet of Jesus. और हम देखते हैं पतरस समान है वो प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर गिर पड़े। He says, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं स्वामी मेरे यहाँ से चले जाओ, मैं एक पापी इंसान हूँ। But Jesus told him, I'll never leave you nor forsake you. Oh, I'm going to be with you till the end of the world. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे संसार छोड़ देता है वैसे मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। Let us live in the strength of the Lord, who can sustain us, who can strengthen us, and who can, when devil throws you, he will keep you close to you, and we can fall at his feet and worship him. Thank you for the time. Thank you for the wonderful translations. 2 dear brothers translated for me, and I had 2 boards, and I'm thankful to the Lord for the opportunity given. May you have a blessed day, and God bless you all. Thank you for your patient listening, and thank you, and have a good day. आइए हम लोग अपने आप को प्रभु को सौंप दें और परमेश्वर हमें आशीष करें। और जिस प्रकार से नाव भर गई थी वैसे ही हमारा जीवन भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इस अध्ययन को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, और जो भाइयों ने दशरथ भाई ने ट्रांसलेशन किया है उसके लिए सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। Vishak sir, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज बहुत ही अच्छे रीति से आपने जो लूका 4 अध्याय से आपने जो
हमको पढ़ाया सिखाया और चौथा अध्याय का आपने जो आज समाप्त किया है। और ये आपका बहुत ही जो मेहनत आपका परिश्रम और आपका लगन और आपने जो हमको सिखाने के लिए जो उम्मीद रखकर ये जो आपका बहुत ही मेहनत के साथ आज हमको सिखाया, इसलिए सर आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे मातृमंडली बिलीवर्स असेंबली के द्वारा, बीडीटीआई के द्वारा, हम सभी की ओर से सर आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका मेहनत में, प्रभु आपकी सेवकाई में, प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। Praise God. God bless you. आज जितने भी भाई बहन आज की क्लास को अटेंड किया है और सर का